किछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लेह, सधना जन तोरा। धर्मां दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार, तुझ बिन सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। वडहंस महला तीजा। हऊँ मैं माया मैल है, माया मैल भरीजै राम। गुरमति मन निर्मला, रसना हर रस पीजै राम। हऊँ मैं माया मैल है, माया मैल भरीजै राम। गुरमति मन निर्मला, रसना हर रस पीजै राम। रसना हर रस पीजै, अंतर भीजै सात शब्द विचारी। अंतर खुहटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पियै पनिहारी। जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रविजै। नानक नाम रते से निर्मल, होर हऊँ मैं मैल भरीजै। जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रविजै। नानक नाम रते से निर्मल, होर हऊँ मैं मैल भरीजै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भरदिआं गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरदेव जी दियाँ बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करन। पावन शब्द दी विचार, बोलण दा ताण ਅਤੇ विचार दा प्रवाह बख्श। एक बार आसीस दिंदिਆਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝਾ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੇ 'ਚ ਵੇਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਕਿਤੇ ਜਗਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨਟ ਆਦਿਕ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਡਾ ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਣਤ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੂਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੇਖਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਿਰਣਤ ਸਹੀ, ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਰਣਤ ਜੀਵ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਕ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਅੱਕ ਟਿੱਡਾ, ਅੱਕ ਡਾਲੀ ਬਹਿ ਖਾਏ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਉਹ ਚੰਗਾ,
जे करै खुदाए खुदाए। जे मान लो बहुत ही घृणत जीए, कोई विचारा किसी नीवें कर्म कर रहा है, पाव मैला सिर ते चुकी जाता, सारा दिन अज नूं आपां ढेर कह देने आ, सारा दिन रूड़ी ते ढेर ते विचारा काम करता है, शरीर ते कपड़ियां चों बदबू आउंदी है। ठीक है, साडे ड्राइंग रूम च बहन का हक उन्होंने नहीं सी देंदे, पर चेता रखना माड़ा नहीं जे वो दे कपड़ियां चों बो आउंदी हो सकती है, दे काम मैले लगते हो सकते ने, पर अगर वो वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा है जां राम राम जो कुछ भी वह करतब है, अगर वह करता है प्रीत ना अपने काम नूं सच्चे दिलों ईमानदार ना करता जे, तो परमात्मा नूं चंगा लगता है। बस ਉਹਦੇ दर्शन ਦੇ ਨਾਲ भी पाप मिटते जे, पर असीं कर नहीं पाते, साडी दृष्टि कमज़ोर है। इसे करके तो ज्ञान का चश्मा लाया करिए। अज जिवें दुनियावी नज़र कमज़ोर होंदी तो असीं चश्मा ला लईने ना, हुण मैनूं दूर तक नज़र नहीं आउंदा, पढ़िया नहीं जाता तो चश्मा ला लिया। इस तरह ही जदों सानूं ये चीज़ां नज़र ना आउण, आम जीव नज़र नहीं आउंदियां, तो गुरु कहते ने ज्ञान का चश्मा ला लिया करो। दरलाए चश्मे और शब्द वरते है कि पाठ करद्या करद्या अपने तो वेख्या होवेगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विच महाराज ने आप ही ये चश्मा शब्द भी वरत्या है। वो भाई तू सत्संगत दे निर्मल जल च इशनान कर, हथ मूँह निर्मला कर, ते ज्ञान का चश्मा ला लै। तो ज्ञान का चश्मा ला के फिर देख, जिवें इशनान तो बाद सुरत आ जाती, होश आ जाती है, फिर सिक्के ने हाँ हुण ठंड पै गई, तो महाराज भी कहने के आसमान में आने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, तरलाए चश्मे, फिर देख, चश्मा ला के देख, फिर की नजर आएगा, कह लगे जह तहाँ मौजूद। फिर जिथे किथे देखेगा गोबिंद ही गोबिंद नजर आएगा। गुरुदेव कृपा करन सानू समझ आए। अज महाराज ने यही गल्लां शब्द के गहरे पक्ष विच साडे नाल कीतियां ने कि भाई ये चीज़ां सानू क्यों नहीं समझ आ रही। तो महाराज कहते ने मैल चढ़ गई है, हिरदे विच मैल चढ़ गई है, विकार है। जिवें हिरदे च मैल चढ़ जाए तो हिरदे की सारी कार्रवाई मैली हो जाती है। आप सानू पता है कि साडे नेत्रां दे विच भी एक विकार चढ़ता है, अक्सर गाहे बगाहे सारे कहते ना मोतिया हो गया जे, मोतिया उतर आया। मोतिया की एक शारीरिक विकार ही तो है, नेत्र विकार है। नेत्रां दे विच एक ऐसा विकार पैदा हो जाता है, पड़दा पै जाता है, जिहदे नाल साडी दृष्टि धुमिल हो जाती है, सानूं दिसणों बंद हो जाता है। तो सियाणे डॉक्टर की करते हैं, वो जिन्होंने आप सर्जरी अजकल कहने आ, वो मोती का पड़दा या जो उत्ते चढ़ जाती कि जिलब दी लेस दे उतार देंगे। बस लेस उतार के, क्योंकि वो लेस इन्नी खतरनाक होंदी है, साढ़े जो कुदरत ने लेंस दिता होंदा उन्होंने डैमेज कर जाती है, तो फिर नवा लेंस पा देंगे। असी करके नवा लेंस पवा लिया। तो चेता रखना, उस तो बाद असी साफ देखन लग पैने। इस तरह मन के नेत्रां दे उत्ते भी हौमे का ये पड़दा पै जाता है। गुरु कोल आउणे आ, गुरुदेव कृपा करते हैं, साडे दिव्य दृष्टि दे इन्हां नेत्रां तो जो सुरत दे नेत्र ने जो विकारां दा पड़दा है उतार देंदे ने, तो फिर कहते हैं जब लाए चश्मा, हुण ज्ञान का चश्मा ला लै। ज्ञान अंजन गुर दिया पढ़ते ना, बहुत बार प्यार न पढ़िया जाता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया। संत ने ज्ञान का चश्मा दिता है। जिवें डॉक्टर ने साडा सारा इलाज किया, लेस उतारती, चश्मा लगाता, पर डॉक्टर तक कौन लैके गया? किसी ने तो मत दी डॉक्टर को जा, कितों तो ज्ञान मिलिया, भावें छोटे जे बालके ने किया हो, भावें किसी भैन भरा ने किया हो, भावें असीं किसी अखबार के वर्के तो पढ़िया हो, पर कितों तो सानू पता लगा ना भी तेरे अख का इलाज फलाने डॉक्टर को हैगा। इवें ही हर किरपा ते वो वाहिगुरू जी की किरपा ते गुरु मिलते हैं। हर किरपा ते संत भेटिया, तो फिर क्यों नानक मन प्रकाश, मन चानना हो गया। तो अज दसते ने हउमै माया मैल है। ये जी मैल है ना, जिवें बाहरों से देखते भी अख ते पर्दा पै गया,
ਅੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ 2 4 10 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਝਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕੋਚ ਝਾੜਦੇ ਝੰਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਰਾ ਕੁ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕੋਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਬਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਦਮ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ। ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚੌਥੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਤਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਕੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ,
बहुत लोग ने जिन्हें अपना पेशा ही भीख मंगना बना लिया, कमा रहे ने, खा रहे हैं। पर चेता रखना, आध्यात्मिक जो सर्कल च आपां जिन्हों धर्म कहन लग पे हाँ, इस मंडल च केवल एक मार्ग है। हौली हौली मार्ग संकुचित होंदे जाते हैं, मार्ग घटते जाते हैं, संकुचित होंदे 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 एक मार्ग, ते एक मार्ग भी इन्ना बारीक हो जाता है कि उत्थे टिके ना पुणहना, उत्थे चले ना उपर चले ना कीड़ी, इन्ना बारीक हो गया जिन्हों कहते वालों निक्की पुरसलात, वाल वर्गा बारीक मार्ग है। भाव बहुत सूक्ष्म सुचेत सावधान, फिर केवल एक मार्ग रह गया। वो मार्ग सन लेके जाता सो दर ते, जिहड़े सिख मार्ग ते चलते ने वो सो दर ते पहुँच बना। इसे करके सानू क्या भाई, अपने विश्वास नूं, अपनी अकीदत नूं, अपनी शरधा नूं, अपनी अरदास प्रार्थना पूजा नितनेम जो कुछ भी कोई शब्द समझदा ते जानदा है, एक ते टिका के रखो। और एक भी ओंकार जे, ये नहीं कि किसी एक होर ते टिका लो, एक भी ओंकार जे, जिस ते दुनिया दे विच रूप बहुत होणगे, दुनिया च ओदा ही पसारा है सारा। आ जितने दुनिया के रूप वेखे सुने पढ़े जाते हैं सब ओहदे ने, पर चेता रखना वो एको है भाई, एको है। साहिब मेरा एको है। तो उस एको तो बिना फिर जो संसार च विचरते आ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता आह बड़ा वधिया पाठ कर दिओ, कोई कहता आह तो कथा बड़ी वधिया कर दिओ, कोई कहता जी मेरे वर्गा तुहाडे वर्गा श्रोता ही कोई नहीं, बस हाँ मैं चढ़न लग पैंदी आ, मेरे वर्गा तो कथावाचक कोई नहीं, मेरे वर्गा श्रोता कोई नहीं, मैं तो रोज़ का नितनेमी हाँ, मैनू तो इन्ने साल हो गए कदे नितनेम खुंझिया ही नहीं, समझ लो हौमे की शुरुआत हो गई। ये बागां की वो अमर वेल है जिहड़ी वड्डे वड्डे रुखां नूं सुका देंदी है। ये हौमे उन्नी सूक्ष्म जी अमर वेल है कि वड्डे वड्डे रुख सुक जाते हैं, तो सदके फल मुक जाते हैं, फुल खत्म हो जाते हैं, केवल सुके टाण रह जाते हैं। तो उन्होंने सुके टाणा तो जो हरियावल होंदी है वो इस हौमे की वेल की होंदी है, ना कि उस रुख की मूल हरियावल होंदी है। इस तरह फिर हौली हौली साडे ते लपेट वधदी है, ये वलेट विच असीं आ जाने आ ते सुक जांदा अंदर, मर जांदा है अंदर, पर हौमे खिड़ी रहिंदी है। बस गुरुदेव कहंदे ने इस हौमे तो अपने आप को बचाओ। जिसका इलाज महाराज कहते ने दारू भी समाहे, ये विच दारू की है, जदों भी कोई गुणात्मक पक्ष सानू प्राप्त होवे ते दूसरा व्यक्ति कहे आह आज तो आनंद आ गया, इतना सोहना बोले हो, इतना सोहना दौड़े हो, इतना सोहना काम किए, उसी वक्त यकदम मन अरदास लै जो सच्चे पातशाह कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाव न जाने मेरा। महाराज तेरी कृपा ते पातशाह दशमेश नूं किते आपने देखिया होना, असीं ते उन्हां दे एक एंगल नूं देखते रह के भंगाणी दा जंग जित्तिया, जो पहला जंग है बहुत वड्डे पद्धर दा, भंगाणी दा जंग जित के आए ने ते लोग जयकार कर रहे हैं। जदों महाराज मैदाने जंग जित के पौंटा साहिब वाले पासे आए ने, तो जिन्हों ने वेख्या इलाका भंगाणी जिथे खास जंग होया तो पौंटा साहिब कुछ वक्फा है, तो जो जित के आए तो नगर दे क्योंकि पौंटा साहिब तो वस चुका सी, कुछ जी परिवार रहिंदे ने, आले दुआले दे अपने खास सिख सैनिक, आले दुआले दे लोग जिहड़े उत्थे रहिंदे ने, सारे पातशाह दशमेश की जय जयकार कर रहे हैं। तुसीं जंग जित आए हो, तो उस वक्त महाराज सानू मत देंदे, जुगत देंदे ने। जे किते दुनियावी राजे वर्गे होंदे ते हंकार करते देखा मैं जित गया, तो महाराज की कहते ने भई जीत मेरी, पर नाल की क्या किरपा काल केरी। और जयंग जीत गीत गाए, जयकार दे गीत गाए ने, पर किहदे करते दे, कहने लगे भई जीत मेरी किरपा काल केरी। शायद सानू पता होवे, असीं इस रहस नूं अजे तक समझ नहीं पाए, बहुत गहरा है। असीं पढ़ते एक ओंकार सत गुर प्रसाद, संपूर्ण बाणी च गुर प्रसाद पढ़ीदा है, तो दशमेश बाणी च तव प्रसाद पढ़ीदा है। एक बहुत बड़ा भेद है जो असीं समझ नहीं पाए, साड़ी समझ मत बुद्ध छोटी है। असीं कहने सारा कुछ गुरु की कृपा दे नाल हो रहा है, ये साडे लिए है ना। असीं कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये गुरु की कृपा दे नाल हो रहा है। महाराज सत है, तो गुरु कह रहे हैं कि कृपा ना होएगा। असीं क्या सिख ने कि महाराज अज फतेह हुई जंग जिते
भोजन पदार्थ रोटी पानी खाण जो कुछ मिलिया ये गुर प्रसाद है। पर गुरु किहदा प्रसाद लैके कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं हे प्रभु तेरी कृपा ते, तव कृपा ते सुख पाया। आप पढ़ते ना कदे कदे, तव कृपा ते तव प्रसाद तेरी कृपा ते। जिते हाँ जंग फतेह याबी हुई है, पर किहदी कृपा किदां हुई? मैं जितया नहीं तव पुके भई जीत मेरी कृपा काल के। तो उसनों प्यार न कहना तव प्रसाद तेरी कृपा। जाप शब्द आरंभता फिर महाराज ने कही तव प्रसाद तेरी कृपा ते। आ जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि निकटता ही इन्नी दिती गई है कि जिथे जाके दूरियां मिट गई, जिन्होंने असीं कदे कदे जाके किसी सज्जन मित्र दे कोल शुकराना करन गए होइए तो की कहने आ तुहाडी कृपा हो गई। अज जो तुसीं किते घर परिवार च शुकराना करते करते किसी मित्र का धन्नवाद करते उहदे घर चले जाने आ, अगला कहता जी बधाई तुहानूं तुहाडा काम रास आ गया, तो असीं कहने जी मेरे किते निताब किते सी, तुसीं मदद ना करते, तुहाडी कृपा दे नाल ही मेरा काम रास आया। असीं ना तुहाडी कृपा। दशमेश पातशाह क्योंकि अकाल दे वो रूप ने जो पिता पुत्र का रूप है ना, तो फिर की कहते पिता जी तुहाडी कृपा नहीं होया। इस रहस नूं असीं मान सकीए। जिवें अज दा सियाणा बच्चा कामयाबियां हासिल करता है तो कहता पिता जी तुहाडी कृपा नाल ही होया, तुहाडे सदके ही होया, मैनूं कौन जाणदा सी, मैं तो तुहाडे करके ही हाँ। तो दशमेश भी कहते हैं प्रभु हे मेरे अकाल पुरख है गुरु पिता तेरे करके ही होया, क्योंकि तुसां ते मैनूं भेजे है, तुसां ते मैनूं सारा कुछ भेज दिता है, तो तौ प्रसाद ये तेरे करके तो होया सब कुछ। पर जदों असीं कहण लग पांगे हे प्रभु तेरे करके, हे सतगुरु तेरे करके, तो साडी मैल मिटन लग पेगी। नहीं तो जे कहण लग पे मेरे करके, तो फिर मैल चढ़न लग पे। मन के आले दुआले विचारां दा एक घेरा हुंदा है, उस घेरे दे विच संकल्प हुंदे ने, बहुत सारे जिंदगी के संकल्प ने। असां संकल्प लए ने असीं आ बनना है, असीं आ बनाउणा है, जिन्होंने असीं इच्छा डिजायर कहने हुंदे आ। हर मनुख दे संकल्प हुंदे ने, सारिਆਂ को हुंदे ने, और संकल्प रखने भी चाहिए ने। सलम बिना संकल्प रखिया तो तरक्की कोई नहीं ना। इत्थे आए कोई संकल्प उठिया तां ही आए ना। जिंदगी दे विच संकल्प जरूरी है। अगली गल जिहड़ी खतरनाक भी है तो कीमती भी है, वो है विकल्प। संकल्प होना बहुत कीमती है, जरूरी है। हर जी नूं अपना निशाना टारगेट लैके रखना, मेरा संकल्प की है, मैं कित्थे जाना है। पर चेता रखना अगली गल है विकल्प की तेरे कोल, उत्थे पहुँचने वास्ते तेरे को ऑप्शनस की ने, उस मुकाम नूं हासिल करने वास्ते तेरे को किन्ने किन्ने ऑप्शन ने। बस वो चंगे भी ने तो खतरनाक। जे ऑप्शन बहुते बना ले तो खतरनाक हो गए। जे एक बनाया तो औखा हो गया। एक ऑप्शन औखा होंदा है, बहुते खतरनाक होंदे ने। एक औखा इस करके होंदा कि उत्थे पहुँचने वास्ते फिर योग्यता बड़ी प्राप्त करनी पैंदी है। कदे कदे फिर समाजिक दर्शन करिए, किते वैकेंसीज निकलदियां ने। वेख्या होना अपने बच्चों असीं फार्म भरते हैं, वैकेंसीज निकलदियां, पता लगा जी 1000 वैकेंसी है, 1000 बंदा मुलाजम रखा जाना है। बड़ी कोई गल नहीं, 5-7-10 हज़ार बच्चे ने फार्म भर भी, फिर भी पता है 1000 बच्चे किते तो नंबर आ ही जाएगा ना। 1000 बंदा भर्ती होना है, तो जे केवल सीटां ही 2 होवन तो बच्चा 1000 होवे, औखा हो गया ना। सीट 1 होवे तो बच्चा ही 500-700 खड़ा हो अगे, फिर औखा हो गया ना। फिर तो क्वालिटी छांटी जाएगी ना। फिर साढ़े को ऑप्शन बहुत नहीं गे, हुण सौखा नहीं गा, औखा हो गया। पर जिहड़ा छंट के जाएगा फिर टॉपर ही होएगा ना, बिल्कुल शुद्ध संवरिया होया। असीं संसार दे से किसी विचार की गल नहीं थी करते भी कोई सिफारिश संसार च होएगी, पर चेता रखना कुछ ऐसे मंडल च सिफारिश नहीं चलती, उत्थे योग्यता काम करती है। याद रखना प्रभु दे दर ते दुनिया की कोई सिफारिश काम नहीं जे करती, उत्थे केवल एक योग्यता काम करती है। योग्यता का नाम है सत। जिवें इत्थे योग्यता के अलग अलग नाम क्वालिफिकेशन होणगे, नंबर होणगे, एटीट्यूड होएगा, कई नावां दे नाल दुनिया की योग्यता नापिया जाता है। पर अध्यात्म की योग्यता केवल तो केवल ही कोई की सत है बस। जिन्हों गुरु नानक पातशाह कहते ने सचियारा है गए, जे सचियारा है तो फिर आ जाए। तो सचियारे वास्ते कर्तव्य की है, सिर उतार के आ।
जो तो प्रेम करण का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। तो तेरा सिर तेरी तली ते होवे, तो मतलब ये नहीं किसी सुसाइड किया होवे, सिर वड्डिया होवे, नहीं। अहंकार हमें सब खत्म होवे, हंकार दा मैं मेरी मैल सब खत्म होवे, ते शरदा निर्मल शुद्धता होवे। उत्थों की यगता है शुद्धता, पवित्रता। उत्थों की योग व्यक्ति नूं महाराज ने शब्द दिता है खालसा। जो उत्थे उस दर ते प्रवान हुंदा है, जो सचियार हुंदा है, उसनूं महाराज ने योग्यता डिग्री बख्शिश की है। जिवें लोग संसार दे उपाधियां देंदे ने, आ डॉक्टरेट प्राप्त कर ली है जी, हुण डॉक्टर हो गए है। महाराज भी कहने कि जिसने सचियार पदवी प्राप्त कर ली है, ये खालसा हो गया। असीं कपड़े पा के खालसा बन जाते हैं, इदा नहीं जी कोई बनता। बहुत कठिन घालना दे विचों गुजरना पैंदा है। जिवें बच्चों नूं सारी रात बैठ के पढ़ना पैंदा है, 20-20 घंटे बच्चे कितने मेहनत करते हैं। सावधान सुचेत रह के इस तरह जिंदगी सावधान तो सुचेत रहिए। अगर सावधान तो सुचेत नहीं हाँ तो फिर साढ़े ते मैल ते चढ़ी जानी है, मैल ते आ ही रही है। सुदर्शन सिंह जी कहने होने आ, सानू अपने घर रोशनी तो हवा चाहिए है ना, खिड़कियाँ खोलांगे तो खिड़कियाँ खुलण दे नाल रोशनी आएगी, हवा आएगी, पर अगला सच डस्ट आएगी। रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी, पर डस्ट ज़रूर आएगी। हो सकता रोशनी ना आवे, हो सकता हवा ना आवे, पर मिट्टी ज़रूर आएगी, गंदगी ज़रूर आएगी। इसे करके हर घर रोज़ाना डस्टिंग होती है, क्योंकि रोशनी आई कि नहीं आई ज़रूरी नहीं है। रात रोशनी नहीं आ रही, अंधकार है, हवा रुकी, हवा नहीं आ रही, पर चेता रखना डस्ट तद भी आ रही है। तो जे किते एक दिन 2 दिन 4 दिन तुसीं घर की डस्टिंग नहीं करते, तुहानूं पता लग जाता भी हाँ घर की डस्टिंग नहीं हुई। महीना पर डस्टिंग ना करो तो आने वाले हर जी नूं पता लग जाएगा, जिहड़ा घर मेहमान आएगा पता लग जाएगा भी इन्हां दे घर सफाई का कोई प्रबंध नहीं, कोई डस्टिंग कोई बैठेगा नहीं। सियाणा मनुख अगर सुचेत होएगा तो फिर साडे घर बैठेगा नहीं, दरवाजे ते खड़ा खड़ा गल करके मुड़ जाएगा, देखे गंद पिया दे घर। तो जे किते 6 महीने तुसीं अपने घर झाड़ू नहीं लाया तो लोग दरवाजे ते आउणा भी बंद कर देणगे। बस इसे तरह साडे अपने हिरदे घर दे विच देखना डस्टिंग कदों हुई है, किन्ना चिर हो गया, अंदर दी मैल भरी नूं। एवें गुरु साडे विहड़े ते कित्थों आ जाणगे, अंदर ते गंद दा ढेर ला के रखे है। 7वें पातशाह महाराज जी नूं किसी ने पुछिया सी, महाराज तुसीं बहुत चंगी गल्लां गुरु नानक साहिब जी दे वेले तो असीं पढ़दे आ रहे हां, इदां करया करो, इदां करया करो, पर ध्यान करन वास्ते नहीं तुसीं कहिंदे। कहिंदे हो ध्यान चंगी चीज़ है, कहिंदे हो ध्याया करो, पर तुसीं कदे बिठा के अपने प्यारे नूं ध्यान समाधि नहीं लवांदे। अज भी दरबार च कदे वेखिया जे सतसंगत दे दरबार च कीर्तन होएगा, कथा होएगी, कवि शर ढाडी कवि दरबार सब कुछ हुंदा है, पर चेतन कदे इत्थे ध्यान की साधना करवाई भी बस बई हुण बह जाओ अखां मीटो, इदां ते आपां कदे नहीं करवाया ना, करवांदे भी नहीं। पता क्यों? वो ध्यान कुछ मिनटां दा हुंदा है, पर गुरसिੱਖੀ का ध्यान तो 24 घंटियां दा है। महाराज कहने लगे असीं ते हर पल उन्होंने ध्यान च रखते हैं। कहने लगा किवें रखदे हो? महाराज ने एक तुक पढ़ के सुनाई, शायद असीं सुनांगे पढ़ांगे तो समझ आएगा। महाराज कहने लगे दिल दरबानी जो करे। ध्यान का मतलब की है? तुसीं अपने सारे ध्यान किसी एक नुकते ते टिका देना। कोई त्रिकुटी ते टिकांदा होएगा, कोई हिरदे स्थल ते, कोई नाभि ते, लोगों के अलग अलग होणगे, असीं व्याख्या नहीं करते उन्हों की, पर महाराज कहते असीं दिल ते टिका देने आ, जिन्होंने गुरबाणी बहुत हाँ हिरदा कहा। गुरबाणी का हिरदा आ संसारी दिल नहीं है। कहने लगे हिरदे ते टिका देने आ, ते हिरदे ते टिका के की मिलेगा? दिल दरवानी जो करे, दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। असीं अपने दिल की पहरेदारी करते हैं भी दिल में कोई माड़ा ख्याल ना आ जाए, बस दिल में किते विकार ना आ जाए। गुरुदेव कृपा करन असीं ऐसा कर सकीए, इस माया की मैल तो बच सकांगे। खिड़की बंद रखांगे, सावधान रहांगे, डस्ट ना आवे, पर जरूरी है खिड़की खोलनी भी पैनी है। संसार की खिड़की खोलनी भी जरूरी है, पर हर रोज़ अपने घर की डस्टिंग करनी भी जरूरी है। बाणी पढ़ना, सिमरन, भजन, सत्संगत, ये अंदर की डस्टिंग है। महाराज के ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ ले,
ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰਿਆ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ।